کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے تو کہاں ہے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. یوں تو ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب اور برائیاں ہوتی ہیں، مگر کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جن سے دوسری برائیاں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور انہی سے نفرتیں، کدورتیں، رکاوٹیں، بدمزگیاں، دوریاں، پستیاں، دشمنیاں، لڑائیاں اور خونریزیاں جنم لیتی ہیں. غصہ یا قہر ایک ایسی ہی برائی ہے. غصے میں ہم وہ کچھ کر جاتے اور کہہ جاتے ہیں جس کا ہوش میں تصور بھی نہیں کر سکتے، اور شاید اس لیے کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے. مگر سوال یہ ہے کہ خدا کے لوگ جو اپنے آپ کو پاک اور رازباز مانتے اور خدا کی ہدایت اور رہنمائی میں چلتے ہیں، کیا وہ بھی قہر و غصہ کرتے ہیں؟ ہاں، خدا کے لوگ بھی غصے میں بہک جاتے اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی تکلیف، شرمندگی اور ٹھوکر کا سبب بنتے ہیں. مگر آئیے دیکھتے ہیں کہ خدا کا پاک الہامی کلام قہر و غصے کے بارے میں کیا کہتا ہے. احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے، لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے. ایک اور مقام پر لکھا ہے، آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے. اور پھر لکھا ہے، تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر، کیونکہ خفگی احمقوں کے سینوں میں رہتی ہے. اور پھر قلم بند ہے، غضبناک آدمی فتنہ برپا کرتا ہے، پر جو قہر میں دھیما ہے جھگڑا مٹاتا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند مسیح یسوع نے اپنے پیروکاروں کو قہر و غصے کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے. ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس ہدایت پر دل سے عمل کرے تو غصے، جھگڑے اور فتنے فساد کی کبھی نوبت نہیں آئے گی. مسیح یسوع نے فرمایا، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاب کر، تب اپنی نظر گزران. یہاں بھائی کا مطلب خونی رشتے کے تحت بھائی نہیں بلکہ ایمان میں کوئی بھی بھائی یا بہن مراد ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کتنے مسیحی اپنے خداوند کی اس بنیادی تعلیم پر عمل کرتے ہیں. اسی لیے اکثر گھروں میں غصہ، جھگڑا، فساد، عبادت گاہوں میں غصہ، جھگڑا، فساد، خدمتی اداروں میں غصہ، جھگڑا، فساد، میاں بیوی میں غصہ، جھگڑا، فساد، یار دوستوں، بھائیوں اور بہنوں میں غصہ، جھگڑا، فساد. تو خود ہی سوچئے کہ خدا ہم پر شفقت و برکت کا ہاتھ رکھے گا یا عدالت کی سزا کے لائق ٹھہرائے گا. چلو مانا کہ غیر مسیحیوں کے پاس نہ تو مسیح ہے، نہ مسیح کا کلام و تعلیم، اور نہ ہی وہ حق کی پہچان رکھتے ہیں. مگر مسیحیوں کے پاس تو مسیح بھی ہے، مسیح کا پاک کلام بھی، اور حق کی پہچان رکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں.
लिहाजा अगर फिर भी मसीह की मानद नहीं बनते और उसकी तालीम और कलाम का मुताला और अमल नहीं करते, उल्टा गुनाह करते हैं, तो उनसे ज्यादा सजा के लायक हैं। आइए देखते हैं कि खुदा का पाक इल्हामी कलाम इस बारे में क्या कहता है। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। हाँ, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफों को खा लेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि खुदा कहर व गजब करने में जल्दी नहीं करता, बल्कि हमारे हक में सब्र करता है कि अपने गुनाहों से तौबा करें और मुआफी पाएं। हाँ, खुदा रहीम व करीम है, मगर वो आदिल खुदा भी है। वो गुनाह को दरगुजर नहीं कर सकता। या तो हम अपने गुनाहों से तौबा करें या कहर व गजब के लिए तैयार हो जाएं। जिनसी हवस परस्ती का यह आलम है कि बेचारी औरतें, बच्चे और बच्चियां इंसान नुमा दरिंदों की दरिंदगी से महफूज नहीं। हालांकि जंगली जानवर भी छोटे बड़े का कुछ अदब लिहाज करते हैं, मगर हम तो बहसीयत मुआशरा गुनाह में इतनी इंतहा को पहुंच चुके हैं कि जानवर भी हमसे छुपते फिरते हैं, क्योंकि हम उन बेजुबानों को भी अपनी हवस का निशाना बनाने से नहीं शर्माते। और जब जमीन पर अखलाकी बदहाली हद से पार हो जाए तो खुदा के सब्र व बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो जाता है, और फिर खुदा के अदल व इंसाफ का तकाजा है कि वो अपना कहर व गजब नाजिल करे। बाइबल मुकद्दस गवाह है कि खुदा बनी नौ इंसान को राह रास्त पर लाने की बार बार कोशिश करता है, और जब इंसान गुनाह से बाज नहीं आता तो इलाही कहर व गजब भड़क उठता है और देखते ही देखते सब कुछ नेस्त व नाबूद हो जाता है। जमीन व आसमान की तख्लीक ही के वक्त जब आदम और हवा ने हुक्मदुली की तो खुदा ने अपने कहर व गजब में दोनों को जन्नत से निकाल बाहर किया, यानी अपने से दूर कर दिया, क्योंकि वो गुनाह के सबब नापाक हो गए थे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती बाड़ी करे। ये थी खुदा के कहर व गजब की पहली झलक। मगर बनिनो इंसान ने इससे सबक नहीं सीखा, बल्कि शैतान के ताबे होकर गुनाहों में डूबता चला गया। आदम और हवा के दो बेटे काइन और हाबिल थे। दोनों खुदा के हजूर अपने खेत के फल का हदिया लाए, और खुदा ने हाबिल का हदिया कबूल किया मगर काइन का कबूल न किया, जिससे काइन बहुत गजबनाक हुआ और हसद में आकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, और खुदा का कहर व गजब काइन पर भड़का। तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ, जिसने अपना मुंह पसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोते तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी, और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। और फिर नूह नबी के जमाने में भी लोग खुदा से दूर होकर गुनाह की पस्तियों में गिर गए। खुदा तो चाहता था कि इंसान उसकी तरह पाक और रासबास हो ताकि उसके साथ रिफाकत रखे, मगर जब ऐसा न हुआ तो खुदा इंसान की हालत देखकर मलूल और रंजीदा हुआ। और खुदावंद ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया, और खुदावंद ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूँ। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। आपने देखा कि नाफरमान और बागी इंसान को पैदा करने से खुदा गमजदा और मलूल हुआ, मगर नेक और आसपास नूह खुदा की नजर में मकबूल ठहरा। आसमानी जांच परख के इसी इलाही मायार की रोशनी में हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो ताबेदारी से रासबाज ठहर कर खुदावंद की नजर में मकबूल हो, या गुनाहगार बनकर नाफरमानी की सजा यानी इलाही कहर व गजब के लिए तैयार हो। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। खुदा ने अपने बंदे नूह से कहा कि कश्ती तैयार कर और उसमें तेरे साथ तेरे खानदान के सब लोग और जानवरों की हर किस्म में से दो दो अपने साथ ले लेना, ताकि वो भी तेरे साथ जिंदा रहें, और अपने साथ खाने पीने की चीजें भी रख लेना।
और जैसा खुदा ने हुक्म दिया नूह ने ताबेदारी से वैसा ही किया। और 40 दिन तक जमीन पर तूफान रहा और पानी बढ़ा और उसने कश्ती को ऊपर उठा दिया। सो कश्ती जमीन पर से उठ गई और पानी जमीन पर चढ़ता ही गया और बहुत बढ़ा और कश्ती पानी के ऊपर तैरती रही और पानी जमीन पर बहुत ही ज्यादा चढ़ा और सब ऊंचे पहाड़ जो दुनिया में हैं छुप गए। पानी उनसे 15 हाथ और ऊपर चढ़ा और पहाड़ डूब गए और सब जानवर जो जमीन पर चलते थे, परिंदे और चौपाए और जंगली जानवर और जमीन पर के सब रेंगने वाले जानदार और सब आदमी मर गए। फकत एक नूह बाकी बचा, या वो जो उसके साथ कश्ती में थे, और पानी जमीन पर 150 दिन तक चढ़ता रहा। आपने देखा कि इंसान जब नाफरमानी से बाज ना आया तो खुदा ने किस तरह अपना कहर और गजब नाजिल किया। इसी तरह बाइबल मुकद्दस में सदूम और अमूरा 2 सरसब्ज और शादाब कदीम जुड़वा शहरों का जिक्र है जो दरियाई यर्दन की वादी में आबाद थे। वहां के लोग भी खुदा से दूर होकर ऐशो इशरत में मदहोश हो गए और मर्दों के साथ जिनसी बदफेली के संगीन गुनाह के मुर्तकिब हुए। अगरचे खुदा के नेक बंदों अब्राहम नबी और लूत नबी ने उन्हें राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर शैतान ने उनकी आंखों पर शैतानियत की पट्टी बांध दी थी और आखिरकार खुदा का कहर व गजब सदूम और अमूरा पर भड़का। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। और अब्राहम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हजूर खड़ा था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। ये है गुनाहों में गिरने और तौबा न करने का अंजाम। मगर खुशी और शादमानी की बात यह है कि हमारा खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए अपने बेटे मसीह यस्सू में होकर खुद दुनिया में आया और सलीब पर हमारे गुनाहों का कफ्फारा अदा करके हमें गंधक और आग की भट्टी में जलने से बचा लिया। अब एक तरफ खुदा है और दूसरी तरफ शैतान, एक तरफ अबदी जिंदगी है और दूसरी तरफ अबदी हलाकत। और जब हम खुदा को यानी अबदी जिंदगी को छोड़कर शैतान को यानी अबदी हलाकत को गले लगाते हैं तो खुदा हसद करता है, क्योंकि खुदा हसद करने वाला खुदा है। जी हाँ, खुदा हसद करने वाला खुदा है। मगर शायद आप सोच रहे हों कि ये कैसे हो सकता है। जानने के लिए हमारा अगला प्रोग्राम जरूर सुनिएगा।